Good morning, my loving kids. Kids, how are you? I hope that all of you fine at your home. Kids, identify this picture. What is this picture? This is an umbrella. What is this? This is an umbrella. We use umbrella in which season? किस season में हम लोग umbrella का use करते हैं बेटा? We use umbrella in rainy season. Okay बेटा? And identify this picture. This is what? This is clouds. What is this beta? This is clouds. It creates rain. It is the main source of water. हमें सबसे मुख्य रूप से वाटर कहाँ से मिलता है बेटा? रेन से मिलती है. ओके, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. क्लियर? ओके, आइडेंटिफाई दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस बेटा? ओके बेटा, दिस इज अ ग्लास in which what is in the glass? Water is in the glass. Okay, it is a glass half full of water. Okay beta, and see this. What is this? This is a balloon. This is a balloon. Okay students, identify with the help of both pictures. Water inside the glass and air inside the balloon. Two topics come out from here. दो टॉपिक यहाँ से निकल रही है. क्या क्या टॉपिक है बेटा? एयर inside the balloon and water inside the glass. So students, two topics are what? Air and water. So, our today's science topic is air and water. Okay students, all of you ready to do some important practice work of this chapter? Ready students? Okay, then start to do. Kids, your chapter name is air and water. First, we will do the question answer of this chapter. Okay beta? Now, question number 1. What is your question number 1? आपका question number 1 क्या है बेटा? Your question number 1 is what is wind? Wind क्या होती है? Okay? Wind क्या होती है? What is wind? Okay? Answer: moving air is called wind. Moving air is called wind. What is बेटा? Moving air is called wind. जो हवा बहती रहती है ना बेटा, उसी को हम लोग wind कहते हैं. So moving air is called wind. Note it kids in your copy. Moving air is called wind. Okay? Kids, your question 2 is write W-R-I-T-E, write two ways, W-A-Y-S, ways in which, W-H-I-C, which you can save water. Okay, this is your second question from this chapter, air and water. Question 2 is write two ways in which you can save water. Okay students, write two ways in which you can save water. Two ways, हम लोग वो तरीके लिखने हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं. वो क्या है बेटा? आंसर we should close take properly, P-R-O-P-E-R-L-Y,
properly after use. This is the first way of saving water. Okay beta? After use. This is the first way of saving water. Second is what? Second is we should take a quick bath. Okay? We should take a quick bath. This is your number 2 way. Okay? We should take a quick bath. इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? इसको समझिए पहले. ओके? Write 2 ways in which you can save water. 2 तरीके बताइए जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को सेव कर सकते हैं. तो वो 2 वेज क्या है? सी हियर. वी शुड क्लोज टेप प्रॉपर्ली आफ्टर ओके. वी शुड क्लोज टेप प्रॉपर्ली आफ्टर यूज. टेप को हमेशा कोई भी वर्क, वाटर रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो उसको यूज करने के बाद टेप को हमेशा उसे क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली बंद कर देना चाहिए. इससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं. और सेकंड क्या है बेटा? वी शुड टेक अ क्विक बाथ. ऐसा नहीं है कि बस गए वॉश बाथरूम में और नहाना हो तो 1-2 घंटे तक नहाते रहे, तो उससे कितनी क्या होगी, बाथिंग करने से वाटर की बहुत लॉस होगी. तो वी शुड टेक अ क्विक बाथ. हम लोग जल्दी से बाथिंग कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा वाटर क्या हो गया, सेव हो जाएगा. ये 2 वेज इंपॉर्टेंट वेज हैं जिसके हेल्प से हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं बेटा, सेव कर सकते हैं. ओके किड्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3 रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ओके, मतलब वाटर की 3 प्रॉपर्टीज आप उसको लिखिए. ओके, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट, क्वालिटीज. वाटर की 3 क्या क्या गुण होते हैं वो हम लोग को लिखना है. ओके बेटा, यू राइट हियर. आपको क्या लिखोगे? क्लीन वाटर इज कलरलेस. नेक्स्ट इज ऑर्डरलेस. Odorless and it takes TAKES and it takes the shape of its content. Container. 3 properties of water is what? Clean water is colorless. इसमें कलर नहीं होता है बेटा. ओके. इट इज ऑर्डरलेस. इसमें टेस्ट नहीं होती है, स्मेल नहीं होती है. ओके. एंड इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. CONTAINER कंटेनर. जिस भी कंटेनर में, जैसे ग्लास में या जग में, किसी भी कंटेनर में उसको रखा जाएगा तो वो उसका शेप ले लेगा वाटर. तो ये क्या है बेटा? 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ओके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 इज हाउ इज वाटर स्टोर. हम लोग वाटर को कैसे स्टोर करके रखते हैं. ये क्या आपका क्वेश्चन है? हाउ इज वाटर स्टोर. हम लोग वाटर को कैसे स्टोर करके रखते हैं. कैसे रखते हैं बेटा स्टोर करके? हाउ इज वाटर स्टोर. कैसे हम इसे स्टोर करके रखते हैं. स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज हाउ इज वाटर स्टोर. आंसर, वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स. वाटर को हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं? डैम्स में. म्युनिसिपल टैंक्स, जो हमारी
हाउस, नेबर हाउस या फिर जो हमारी कॉलोनीज में इम्पॉर्टेंट टैंक्स बनी होती है उसमें स्टोर करके रखते हैं, जिससे हमारे घर में वाटर सप्लाई आती है। और हाउस टैंक्स, और हमारे घर के जो टॉप फ्लोर में जो टैंक्स लगी रहती है उसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं। एंड ए पॉट्स, जो घड़े में जो घर में हम लोग पॉट्स यूज करते हैं, जैसे अर्थन पॉट हो गया या फिर और भी डिफरेंट से पॉट्स हो गए, उसमें हम लोग वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ओके बेटा। किड्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is what? Write, W-R-I-T-E, write to ways, W-A-Y-S, ways, in which, write to ways in which air helps us. Air helps us. क्या क्वेश्चन है बेटा? राइट टू वेज इन विच एयर हेल्प अस. टू वेज हम लोग को बताने हैं जिससे क्या होता है, जिससे एयर हम लोग को किस किस वर्क में हेल्प करता है. एयर, ओके. एयर मीन्स हवा. हवा हमें कौन कौन से कामों में मदद करती है वो हम लोग को लिखना है. राइट टू वेज इन विच एयर हेल्प अस. योर आंसर इज व्हाट बेटा? वेरी इजी. योर आंसर इज your answer is air helps in burning, B-U-R-N-I-N-G, burning, and in drying, D-R-Y-I-N-G, and in drying wet clothes. Okay, and in drying wet clothes. This is your answer. Write two ways in which air helps us. दो ways लिखने हैं जिस वर्क में एयर हमारा क्या करता है, हेल्प करता है. एयर हेल्प्स इन बर्निंग. एयर क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है. एंड इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स, जो कपड़े गीले होते रहते हैं उनको सुखाने में ये क्या करता है, एयर हेल्प करता है. ओके बेटा. आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. ओके बेटा. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.